جج صاحبان نوٹ فرمائیں، نمبر شمار 12 مومن عبد الباسط۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر ووقار جج صاحبان و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ آج کے اس معاشرہ اور ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان اخلاقی طور پہ اس قدر گر چکا ہے کہ شیطان بھی کفر افسوس ماننے پر مجبور ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو کسی فلمی اداکار کی نقل کرو یا کسی فلاسفر کی نقل کرو یا کسی بادشاہ کی تقلید کرو تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ دنیا پرست لوگوں کی اتباع کیا رنگ لا رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی باتوں پر عمل کرنے سے کتراتا ہے، ایک بیٹی اپنی نیک ماں کے نقش و قدم کو اپنانے سے بھاگتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور تو صحیح کثر موبائل اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ آج عمرانیت اور بے حیائی کا یہ عالم ہماری بہن بیٹیاں اپنے ہی گھروں سے تنگ اور چست لباس پہن کر کالج اور یونیورسٹیاں جا رہی ہے، جسے زمانہ ترقی کا نام دے رہا ہے۔ وہ ترقی نہیں، یہ عیاشی ہے۔ ہماری ذہنیت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس معاشرے کی عملی مثال ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ تھی، جس پاک معاشرے کے لیے غیر بھی دیا کرتے تھے، اسی معاشرے میں بھی حیاء عام ہو رہی ہے۔ ایک سوال، ذمہ دار کون؟ سوچو مسلمانوں، کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا روشن ماضی ہمیں سزا دے رہا ہے۔ ہماری منزل یہاں وہاں نہیں بلکہ سیدھا مدینہ ہے۔ مدینے والے آقا کی محبت کو اپنا شعار بنا لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تقلید کرنا ہے تو رحمت عالم کی تقلید کرو، اگر اتباع کرنا ہے تو رسول پاک کی اتباع کرو، اگر نقش قدم پہ چلنا ہے تو نبی مکرم کے نقش قدم پہ چلو، جنہوں نے تقلید اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ظلم سہ کر بھی ظالم کے حق میں دعائیں کی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد و فرمانبرداری کرنے لگے، اگر آپ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا تو وہ وقت دور نہیں، حکومت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا ہوگا، سلطنت ہماری ہوگی، بلکہ ساری خدائی ہماری ہوگی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ وہ قلم تیرے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کریں کہ کامیابی ہمارے قدم چھوئے اور ہم دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہو۔ اس دعا سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ولا علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمار 21 جج صاحبان احمد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی
होने का हुक्म दिया है। तुम्हें अरबी ज़बान समझती हो या ना समझती हो, नमाज तो अरबी ज़बान ही में पढ़ना है क्योंकि वो आका की ज़बान है। इरशाद रब्बानी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें बशरी लिबास में भेजा और कह दिया कि ऐ महबूब तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। ऐ महबूब तुम खाओ ताकि मेरे बंदों को खाना आ जाए। ऐ महबूब तुम आयशा के शौहर बनो ताकि मेरे बंदों को शौहर बनना आ जाए। ऐ महबूब तुम फातिमा के बाप बनो ताकि मेरे बंदों को बाप बनना आ जाए। ऐ महबूब तुम जंग वक्त में अपने दांतों को शहीद करवा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दन कटवाना आ जाए। ऐ महबूब तुम खाने काबा से भूतों को निकाल दो ताकि मेरे बंदों को मस्जिदों से निकालना आ जाए। खातीन हजरात, उमर फारूक का वाकया सुनाऊं। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि अपनी फरमाबरदार बीवी को तलाक दे दे। बार बार गाह मुस्तफा ने पहुंची, आपने वजह पूछी, उमर फारूक पर कुर्बान जाइए। जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि शादी के बाद अब्दुल्ला की हाजिरी आपकी बारगाह में कम हो गई है, इसलिए मैंने तलाक का हुक्म दिया ताकि बीवी छूट जाए, आपकी बारगाह न छूटे। मकाम सहबा में क्या हुआ था? बाद नमाज असर सरकार मदीना हजरत अली के जामुओं पर सर रखकर सो रहे थे। अली ने आधी असर कज़ा ना की थी, मगर अली इश्क ने गवारा ना किया कि उस सरकार के हराम में खलल डालकर असर अदा करे, लिहाजा सूरज डूब गया। अली की आंसुओं ने सरकार के रुखसारों को बोसा लिया। आका ने देखा कि अली की असर कज़ा हो गई है तो ये ना कहा कि तुमने मेरे लिए अपनी नमाज क्यों छोड़ दी, बल्कि फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। या रब्बल आलमीन, अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में थे। आज अगर अली की असर कज़ा हो गई तो दुनिया में फर्सवा हो जाएगी। सूरज को पलटना पड़ा, वक्त को लौटना पड़ा। हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, जहाने कल्ब में सोज़े बिलाल रखा है। मकाम सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, मकाम सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। अलगज सहाबा का सीना इश्क नबी का मदीना था। सरकार आवाज देते तो नमाज तोड़कर हुक्म बजा लाते। क्या वजह थी कि अबू बकर ने उसामा के लश्कर को वापस ना बुलाया? मर्द पर सोना हराम होने के बावजूद हजरत बला सोने की अंगूठी पहना करते थे। सराता को क्यों सोने का कंगन पहनाया गया? अब्दुल रहमान बिना क्यों रेशम पहनते थे? अली ने फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह क्यों ना किया? ये सब इताअत और हुक्म मुस्तफा की वजह से था। सामईन, सच तो ये है कि हुजूर की सच्ची इताअत ही का नाम इबादत है, यही शहादत है, यही रियासत है। तेरे रास्ते में मत मिटना, शहादत इसको कहते हैं। तेरे रास्ते में मत मिटना, शहादत इसको कहते हैं। तेरे पूंछे में होना दफन, जन्नत इसको कहते हैं। इताअत नाम है, असल में तेरी गुलामी का। इताअत नाम है, असल में तेरी गुलामी का। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं। हमारे नहीं बला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए स्टेज पे बैठे तमाम असातिज़ा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ को नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरी तकरीर का उन्वान है, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिर एक बार आप लोगों के सामने तकरीर करने का मौका मिला। भाइयों, खुदा की ज़ात बहुत बुलंद है, हम और आप ना तो सोच सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। हदीस में है कि सातों समंदर के पानी को सिहाई बना लिया जाए और पूरी दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए तो भी हम अल्लाह की तारीफ नहीं लिख सकते। फिर भी अल्लाह अपने बंदों से, उसके माँ बाप से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता
तो मैं इसके गुनाह माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह काश तू मुझे इसी उम्मत में पैदा करता। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो हमारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो पूरी दुनिया में जहालत फैली थी। लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, शराब पीना आम हो चुका था, बुत परस्ती का माहौल था। अल्लाह ने हम पर करम फरमाया और मक्के में अपने महबूब को पैदा फरमाया। उनके आने से सारा जहां महक उठा, हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई थी। हमारे नबी हमारे लिए दुआ की, ए अल्लाह तू मेरी उम्मत को माफ फरमा। हमारे प्यारे नबी को बहुत सताया गया, इतना किसी नबी को नहीं सताया गया, फिर भी हमारे नबी ने कभी अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। इन्होंने सारी जिंदगी फाका कशी में गुजारे। हमारे नबी फरमाते हैं, ए अल्लाह तू मुझे एक दिन खिला और दूसरे दिन भूखा रख, ताकि मैं भूखा रहकर तेरी हमदो सना करूं। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, आप इशारा करें तो मैं मक्के का पहाड़ सोना बनाकर तुम्हारे आगे पीछे घुमाऊं। सारी दुनिया, चांद, तारे, सूरज सब हमारे नबी के सदके में अल्लाह ताला ने फरमाया है। हमारे नबी के एक इशारे पर सूरज पलट आता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, दरख्त, कंकड़, पहाड़, परिंदे सब हमारे नबी के एक इशारे पर उनकी नबूवत और रिसालत की गवाही देने चले आते हैं। इसीलिए ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक शेर कहना चाहती हूँ। सीख से मोती बनी, मोती से नगीना निकला, सीख से मोती बनी, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़कर मोहम्मद का पसीना निकला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान, कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्ज़ा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, कब्ज़ा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटे अफलाक पर। सदर ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामईन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम। गुले तर अपनी खुशबू और अनाई से एजाज पाते हैं, गिले तर अपनी ज़रख़ेज़ी से कीमिया है। सूरज की सरफराज़ी उसकी तजल्लियात से, मोहम्मद की विदा से भी उनकी ज़ौक़ शानी है, और मौसम बारह अपनी हयात अफ़रोज़ी से कामयाब। आइए इन तमहीदात के दरीचे में मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरा मौज़ू सुख़न है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशिरा। हज़रात, कुफ्र और ज़लालत के अमीक अंधेरे में गुम तड़पती सिसकती इंसानियत का मुक़द्दर उस वक्त जागा जब खैरुल बशर इस बज़्म कीती में रहमत आलम का तशरीफ लाए। अय्याम शीर फ़ारगी से ही आपकी हर अदा, आपके शमाइल व फ़ज़ाइल इंतहाई शरीफाना, मौजिज़ाना और पैगंबराना वक़ार लिए हुए थे। इब्तिदाई वही में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला
शहादत याद नहीं, खातून जन्नत की हयादारी, परहेजगारी और पर्दादारी याद नहीं। हम अगर बदमनिस्वा के फैशन परेड और पेपर की आम है, मखलूक तालीम का रुझान आम है। गज़वा खंदक के मौके पर असहाब रसूलुल्लाह खुद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक का पत्थर बंधे थे, क्या हमें याद नहीं? मगर दौर हाजिर में शिकम सेरी और होटलबाजियों का रिवाज आम है। फलसफे शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम भूल गए, कुरान को ताक में रखकर हम भूल गए, नमाजों के औकात हमें याद नहीं, मगर टीवी के प्रोग्राम सब याद है। अपनी खामियां पर नजर नहीं, दूसरों के उयूब हमें याद है। हजरात, साले मुआशरे के खैर को खैर बात कहा और हर शर को खुशामदीद कहा हमने। नेक माहौल का हर तिरिया की यादें मासी हुआ, हर गैर हलाल को जारी रखा हमने। सच तो यह है कि वतन हो न अनिल मुनकर के मनसब कोई भूल बैठे हम। खुदारा होश में आइए, कबल इसके कि सहयोनी और मसीही ताकतों का अज़दहा हमें निकल जाए, कबल इसके कि इस्लाम दुश्मनों की इफरीत अपने खूनी पंजे गाड़ दे, कबल इसके कि हमारी इमलाक और औलादें छीन ली जाए, कबल इसके कि कब्र का अंधेरा आ जाए। आइए हम सिद्ध दिल से कहते हैं, गफलत आई थी मगर आज बेदार है हम, वरना ये कहना होगा कि नजर आती है दुनिया में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली फैल दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वदे बर्बादी, इसी से काम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है तौबा की हकीकत। मोहतरम हजरात, आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा हुजूर नबी करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम आकाए नामदार मदनी ताजदार रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। तौबा की फजीलत अल्लाह ताला के इस फरमान से साबित होता है कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को महबूब रखता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है और तौबा करने वाला उस इंसान की तरह है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह